In the last video, students, we have seen that when the maximum force is experienced by a charged particle in a magnetic field में अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा था तो कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता था, एंड वी हैव F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा व्हेन दिस थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री पे होता था. दिस एंगल बिटवीन B एंड V, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज योर 90 डिग्री. If a charged particle is moving perpendicular to direction of magnetic field, it experiences a maximum force. Now, how to find the units of V? Very simple way to find units of everything is simply from this formula we write B equal to F upon QV sin theta. And the magnetic field, if force is 1 Newton, charge is 1 Coulomb, velocity 1 ms minus 1, so we get a unit that is 1 Tesla. How to find this dimensional formula? Very easy. Dimensional formula of your magnetic field. Force dimensional formula is mLT minus 2. And dimensional formula for your charge is AT. And for velocity it is LT minus 1. Charge का formula AT कैसे आया? Because I is Q upon T. So here from this we can derive the formula that is your AT. That is for current Q equal to IT. And implies I into T is your ampere into time. Now let's move how to solve it further. See, M is here, L T minus 2, A minus 1, T here is plus 1, T here is minus 1. Just take all the things upside, T1, T minus 1, it will get cancelled out. It will come down to be T minus 1, T1. And here it is already T minus 2. So finally we have a dimensional formula for this, that is your MA minus 1 T minus 2. This is a dimensional formula for your magnetic field. This is your dimensional formula for your magnetic field. Now we are going to a very interesting topic, that is a law in a magnetism, which is for a current element. Yes students, current element. Let's see how. The scientist known as there is law Biot-Savart's law. There is a law in magnetism which is known as your Biot-Savart's law. Let me explain this. If this is a current carrying conductor XY, suppose यहाँ पे current I flow कर रहा है इस conductor से, that is I. Now what happened? एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हमने कंसीडर किया. इस पूरी वायर में, करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट वी हैव कंसीडर, दैट इज योर DN. दिस इज द लेंथ ऑफ वायर इज L. छोटा सा एक एलिमेंट DN. अब करंट कैरिंग वायर सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का. तो क्या इस पूरे एलिमेंट के कारण अगर यहाँ पे किसी पॉइंट P पे कोई फील्ड जनरेट हो सकता है? तो आंसर था यस, हो सकता है. एंड व्हाट इज दिस DL? ये DL क्या चीज है? स्टूडेंट लिसन इट वेरी केयरफुली. दिस इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ योर मैग्नेटिज्म चैप्टर, दैट इज Biot-Savart's लॉ. करंट कैरिंग कंडक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू फाइंड मैग्नेटिक field induction with the help of Biot-Savart's law. This is one of the most important laws. How it works? यहाँ पे DL आप देख रहे हो, इसे कहते हैं length element. And when it combines with current, it is known as current element. ये बहुत ही अच्छी चीज है करंट एलिमेंट. आपने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज से जब दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगती थी, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ. वो हमें कूलम्स लॉ देता था, एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स, और फोर्स कुछ इस प्रकार में आती थी, वो Q अपॉन R स्क्वायर. लेकिन अगर वो लीनियर चार्ज के कारण फोर्स होती थी तब R स्क्वायर एब्सेंट होता था वहां पे, बिकॉज दैट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वैसे ही यहाँ पे करंट एलिमेंट इज योर IDL. आइडियल के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है? तो यहाँ आइडियल इज एक्ट लाइक अ पॉइंट, क्योंकि
मैग्नेटिज्म में ऐसी चीज बनाना कि कहीं से पॉइंट सोर्स बन जाए मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का हमें सोर्स पता है क्या? करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। लेकिन क्या एक ऐसा एलिमेंट बनाया जा सकता है, लाइक ए वेरी स्मॉल एलिमेंट, अ पॉइंट एलिमेंट, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन सके? तो आंसर था यस, दिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में यही तो डिस्कवर हुआ। यस, ऐसा करंट बनाया जा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता था एट पॉइंट पी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डी। तो अब हमने पहले बता चुके हैं कि फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड। इट मीन्स दिस मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, and this magnetic field is also proportional to this small element which is formed due to this. So entire thing we can write IDL. इस सारे को हम लिख सकते हैं IDL. This IDL is called current element and this is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कूलम्ब्स लॉ में जो चार्ज का सोर्स बनता था वो स्केलर होता था, चार्ज वाज अ स्केलर क्वांटिटी। बट आइडियल ये पूरा क्या है? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आता है कि ये इसके टेंजेंट परपेंडिकुलर था, इट इज जस्ट लाइक थीटा डिग्री, हियर इट इज आर। नाउ व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? यहां पे आप देख रहे हो इसके बीच में एंगल जो हमारा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड डीवी और करंट एलिमेंट के बीच में, इट इज योर थीटा। एंड विद द डिस्टेंस, जैसे बाकी फील्ड डिक्रीज होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करके, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करके। हाँ, पूरे करंट एलिमेंट के साथ आर स्क्वायर नहीं लग सकता था, लेकिन पूरे करंट के साथ आर स्क्वायर नहीं लग सकता था, लेकिन आइडियल के साथ, जैसे पॉइंट चार्ज के साथ कूलम में Q अपॉन आर स्क्वायर की फोर्स आती थी, वैसे ही आइडियल के साथ हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इट मीन्स दिस थिंग comes out to be ideal upon r square. But one more important factor is there. That is, for example, let me explain you. Please understand it very thoroughly, students. It is one of the most important laws. इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। अगर आपका ये करंट एलिमेंट मैं यहाँ पे रखूँ, let me take this only current element, that is your ideal. Here it is making 90 degrees, suppose with this point P. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी आपका पॉइंट Q ले लो, यहाँ आपका पॉइंट R ले लो, यहाँ आपका पॉइंट S ले लो। सपोज यहाँ पे 90 पे था, इतना एंगल ये अपना 60 पे बना रहा है, ये एंगल आपका और फर्दर एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएंगे। एंड व्हाट विल हैपन? हियर इट विल बी द जीरो, इसके बिल्कुल मेल खाएगा एंगल। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है, ऐसी कौन सी साइन वैल्यू है अपनी, जो थीटा जिसपे एकदम से हमें जीरो पे जीरो मिल जाए, इसमें थीटा की वैल्यू जीरो पे जीरो और एंगल की वैल्यू 90 पे हमें मैक्सिमम मिल जाए? आंसर आता है साइन। हियर द साइन थीटा इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें 0 डिग्री पे हमें जीरो वैल्यू मिलती है और 90 पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे 90 था तो मैक्सिमम वैल्यू मिली, यहाँ 60 होता गया। हुआ क्या? यहाँ पे डीवी था, यहाँ भी पॉइंट पे था, यहाँ पे डीवी भी सेम था, आई भी सेम था, उसके बावजूद भी देयर इज सर्टेन डिफरेंस। इसमें फील्ड में चेंजेस क्या आ रहे थे? ड्यू टू सर्टेन एंगुलर वेरिएशंस थी। इसमें एंगुलर वेरिएशंस किस कारण आ रही थी? थीटा के कारण, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा था, ऑब्वियसली उसके बीच का डिस्टेंस भी वो था, बट देयर इज अ चेंज इन द फील्ड सिनेरियो एंड दैट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन एंगल। तो इट बिकम्स नाउ बायोट-सैवर्ट्स लॉ को अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू आई dl. Now it is the same current element is proportional to 1 upon r square is proportional to sin theta. When we combine, we get I dl sin theta upon r square. That is dv equal to, here we replace it with mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is your Biot-Savart's